Hello students, this is the chapter number 7 and today we will start the exercise. So let's start. Choose the correct option of the following question. The first question, by which process the material of broken rocks assemble at its original place? The correct answer is weathering. And the second question, where among the following winds perform its work? In desert. Which is the vital factor that makes soil fertile? Humus. Fill in the blanks. When the rock breaks into pieces without chemical reaction is physical weathering. The process of flattening of unleveled surface is called surface balancing. With the deposition, Oxbow Lake is formed. The Chilka Lake is in Odisha is an example of lagoon lake. So here is your optional questions are finished and now very short answer type questions. स्टूडेंट्स ये पेज नंबर जो है इसमें क्वेश्चन आंसर है, ये हम जेपीजी जो फाइल होती है जो डॉक्यूमेंट्री वाला जो लास्ट में एक कॉलम होता है उसको आप चेक करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा. सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. विच आर थ्री फंक्शंस ऑफ अ रिवर? पेज नंबर 61. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर to here. The following flowing water of rivers to deposition. Next question. Which are the three stages of a river? Page number 62. There are three stages of a rivers: young, matured and old age. Next, what is an estuary? Page number 64. Here is the estuary. Some of the rivers do not form delta at their meeting point. Such rivers become wider at their meeting point with sea, and the sea waves sweep away the water of the river into deep sea. Most of these places remain lower. These are called estuaries. Next, what is a geyser? Page number 67. Here is the answer. Due to underground heat, water from big water source is thrown up in the form of mountain. It is called geyser. And you have to make also the picture of geyser, this one. Next, how is the Yardang formed? Here is the answer. Yardang, large area of soft, poorly consolidated rock and bedrock surfaces that have been extensively grooved, floated and pitted by wind erosion. Now next, what is a lagoon? Page number 70. Lagoon. From here to here known as lagoon. यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे. Now next question. What is the factors that help in soil formation? Page number 70. From here the soil is a thin layer. यहाँ से लेकर के covers land तक, फिर उसके नीचे से the weathering and erosion process of rocks से लेकर के vegetation and creature तक. Next question. What is weathering? Write the names of different types of weathering. Page number 58 and 59. From here, weathering is a kind of process. यहाँ से लेकर के factors of the season यहाँ तक लिखेंगे. Then types of weathering, आपको weathering is of three types: physical, chemical and biological weathering. Physical weathering के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे. The disintegration से लेकर के physical weathering तक. केमिकल वेदरिंग में लिखेंगे ड्यू टू केमिकल चेंजेस से लेकर के रॉक्स मर्ज्ड इनटू वाटर और डिसइंटीग्रेट, मेल्ट और गेट रस्टेड, दस द रॉक्स लॉस इट्स ओरिजिनलिटी एंड बस ओरिजिनलिटी तक. एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग में द बायोलॉजिकल वेदरिंग यहां से लेकर के ह्यूमन बीइंग्स तक. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन लो एंड रैपिड वेस्टिंग. लो एंड रैपिड वास्टिंग. The process of surface sliding by weathering is called low wasting, and the process of filling up the holes is called high or rapid wasting. Next question. How the V-shaped valley is formed? Page number 62. ये V-shaped valley, short answer 4. ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये पिक्चर बनानी है. Next question. What are the moraines? राइट इट्स टाइप. पेज नंबर 66. इसको यहाँ टॉप से स्टार्ट करेंगे. व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट, यहाँ से लेकर के पूरा ये यहाँ तक लिखेंगे, नोन एज मोरेन्स. फिर यहाँ लिखेंगे मोरेन्स आर ऑफ द फोर फॉलोइंग टाइप्स:
मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स, मेडियल मोरेन्स एंड टर्मिनल मोरेन्स। इसके बारे में ये पूरा लिखेंगे और ये मोरेन्स की पिक बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर लेवल, पेज नंबर 67। यहां से लिखना है द रॉक्स विच होल्ड अंडरग्राउंड, यहां से लेकर के कॉल्ड ग्राउंड वाटर लेवल, और ये वाली पिक्चर बनानी है उसके लिए। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, डिस्कस द सरफेस बैलेंसिंग, पेज नंबर 60 एंड 61। सरफेस बैलेंसिंग की ये पिक आपको बनानी है, इसके साथ साथ द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस से लेकर के इरोजन साइकिल तक, और इसके बाद नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस से यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ सरफेस बैलेंस की ये पिक्चर बनाएंगे। इस पेज 60 पेज से सरफेस बैलेंसिंग की पिक्चर बस बनाएंगे और लिखेंगे इसको यहाँ से, द सरफेस लेवलिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इस यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिखेंगे, ये द सरफेस लेवलिंग से लेकर के पूरा सेकेंड पैरा में है ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द ब्रोकन और अनब्रोकन मटेरियल डाउनवर्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, यहां तक लिखेंगे। और उसके बाद फिर ये लिखेंगे द वाइडनिंग एंड फ्लैटनिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस बैलेंसिंग, दिस इंक्लूड्स बोथ स्लो एंड रैपिड वास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल इरोजन, राइट इट्स कॉजेज एंड वेज टू कंजर्व सॉइल, पेज नंबर 72। ये सॉइल इरोजन टॉपिक डाला हुआ है और ये है आंसर, द नेचुरल फोर्सेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यहां से लेकर के यहां तक। फिर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, ये पूरा लिखना है कॉजेज सॉइल इरोजन के। फिर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन किस तरह से होगा, तो ये फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन टू कंजर्व सॉइल, तो ये टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये पूरा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये पूरा लिखना है आपको। Next, question number 3. How does wind erosion take place? Mention the landforms created by the wind. Page number 68 and 69. Here is the function of the wind. Wind यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे। फिर ये wind is more active से लेकर के सेकेंड लाइन में available for the wind। फिर फोर्थ लाइन में द ओपन रॉक से लेकर के बाय वेदरिंग तक। और इरोजन यहां से लिखेंगे लॉन्ग आंसर 3 में द वेलोसिटी से लेकर के ये विथ इट, और द वर्क ऑफ इरोजन इज डन से लेकर के फ्रिक्शन तक। फिर इसकी तीनों प्रोसेस लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रिक्शन एंड कोलिजन। और इसके अफेक्टेड बाय लिखेंगे द स्पीड ऑफ द विंड, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे बाय विंड इरोजन तक। और लैंड फॉर्म्स भी लिखना है, तो लैंड फॉर्म से मशरूम एंड ये सैंड ड्यून्स ये लिखेंगे कि कौन कौन से लैंड से फॉर्म होते हैं, तो ये मशरूम, सैंड ड्यून्स और इसके साथ लाउस, ये 3 आपको लिखने हैं। तो ये 2 पिक्चर बनेंगी, ये 3 लिखेंगे, मशरूम्स, यहां से यहां तक मशरूम्स में आ जाएगा, ये सैंड ड्यून्स और ये लाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्लेशियर, राइट अबाउट टाइप्स ऑफ ग्लेशियर विथ एग्जाम्पल, पेज नंबर 65। हियर इज द आंसर, व्हाट इज अ ग्लेशियर, ये यहां से लेकर स्टार्ट करेंगे, द रीजन वेयर से लेकर के कॉल्ड स्नोफॉल तक। फिर उसके नीचे फोर्थ लाइन में द स्नो लाइन से लेकर के ड्वेलिंग ऑफ स्नो तक। फिर उसके नीचे इन हिमालयास, फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के नोन एज अ ग्लेशियर तक। फिर टाइप्स ऑफ ग्लेशियर लिखेंगे, आ रिवर ऑफ मूविंग, यहां से लेकर के 2 ग्रुप्स, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में यहां से यहां तक लिखेंगे, वैली ग्लेशियर में यहां से यहां तक लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर विथ पिक्चर, पेज नंबर 66। इसको यहां से लिखेंगे, द वाटर विच कलेक्ट्स ऑन द ग्राउंड गोज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, ये यहां से लिखेंगे। लॉन्ग आंसर 6 है ये, यहां से स्टार्ट करेंगे द वाटर से लेकर के अंडरग्राउंड वाटर यहां तक। फिर उसके फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन पेज नंबर 67 में आइए। ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ बैलेंसिंग द सरफेस, यहां से लेकर के ये पूरा अंडरग्राउंड लैंडस्केप तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द सी वेव्स वर्क एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, पेज नंबर 69। हियर इज द आंसर, फंक्शन ऑफ द सी वेव, सी वाटर से लेकर के ये पूरा, फिर वेदरिंग और ट्रांसपोरेशन, ये पूरा फंक्शन यहां तक लिख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर
your chapter number 7 is finished, and we will do the miscellaneous question 1 in after the syllabus. We will do the question, miscellaneous 1, miscellaneous 2, miscellaneous 3 all together. And here is your chapter 7 exercise is finished. So in the next video we will start the new chapter.